السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں عدیل احمد۔ کراچی میں صبح سویرے بوندا باندی سے شہر کا موسم خوشگوار ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران شہر کا مطلع جزوی آبر آلود رہنے کا امکان ہے، جبکہ شام یا رات میں بوندا باندی اور ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات نے بتایا کہ شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا اور آئندہ 24 گھنٹوں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 سے 35 سینٹی گریڈ ریکارڈ رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ ہوا میں نمی کا تناسب 82% ہے اور سمندری ہوائیں 24 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں۔ اسلام آباد میں وفاقی کابینہ میں پی ٹی آئی پر پابندی عائد کرنے کا معاملہ زیر غور نہیں آیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا، جس میں اہم معاملات پر غور کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق کابینہ نے دوست ممالک کے کاروباری افراد اور شہریوں کو ویزا فری انٹری کی منظوری دے دی۔ وزارت داخلہ کی سمری پر 126 ممالک کے باشندوں کو ویزا فری انٹری کی منظوری دے دی گئی ہے۔ ان ممالک کے لیے ڈیجیٹل ویزا دینے کی منظوری دی گئی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کابینہ میں پی ٹی آئی پر پابندی کا معاملہ بھی زیر غور آنا تھا، تاہم اجلاس میں اس معاملے پر کوئی غور نہیں کیا گیا۔ طبی اور سماجی امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں آبادی کا بم پھٹنے والا ہے، اسے کنٹرول نہ کیا گیا تو بہت بڑی تباہی ہوگی۔ لاہور میں میر خلیل الرحمان سوسائٹی کے زیر اہتمام سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے ڈی جی محکمہ پاپولیشن سمن رائے اور پرنسپل سمز ڈاکٹر زہرا خانم کا کہنا تھا کہ آبادی پر کنٹرول کے ساتھ ساتھ وسائل میں بھی اضافہ بہت ضروری ہے۔ ڈی پی او جہلم ناصر محمود باجوہ کا تھانہ دینا میں کھلی کچہری کا انعقاد، جس میں ڈی ایس پی صدر ملک عقیل عباس، ایس ایچ او تھانہ احسان عباس، پولیس افسران اور شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ کھلی کچہری میں آنے والے شہریوں کی شکایات سن کر ان کے حل کے لیے متعلقہ افسران کو احکامات جاری کر دیے گئے۔ شہریوں کی درخواستوں پر ڈی ایس پی صدر سرکل اور ایس ایچ او کو فوری طور پر مقدمات درج کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ درخواستوں پر دیے گئے ٹائم فریم میں قانونی کارروائی کر کے رپورٹ پیش کی جائے گی۔ تھانہ کی سطح پر پبلک سروس ڈیلیوری کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ ماناوالا میں نان سٹاپ ڈکیتیوں کا سلسلہ عروج پر پولیس وارداتیں کنٹرول کرنے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہیں۔ شہری لاکھوں روپے نقدی اور قیمتی موبائل فون سے محروم ہو گئے۔ مزاحمت پر ڈاکو کی فائرنگ سے نوجوان شدید زخمی ہو گیا۔ شہریوں کا اعلیٰ حکام اور ڈی پی او شیخو پورہ بلال ظفر شیخ سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ۔ چیف ایگزیکٹو لیسکو انجینئر شاہد حیدر کی ہدایت پر بجلی چوروں کے خلاف 24 گھنٹے آپریشن جاری۔ آپریشنز کو مزید تیز کرنے کے لیے 8 سرکلز میں رات کو بھی کارروائیاں شروع کر دی گئی ہیں۔ لیسکو کی خصوصی ٹیمیں رات کے وقت بھی اپنے اپنے علاقوں میں چیکنگ آپریشنز کرنے میں مصروف ہیں۔ چیکنگ آپریشنز کے دوران گھریلو، کمرشل اور صنعتی کنیکشنز کو چیک کیا جا رہا ہے۔ لیسکو اپنے صارفین کو بجلی کی بلا تعطل معیاری سپلائی فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ گجرانوالہ میں بجلی کا بل زیادہ آنے پر بھائی کے ہاتھوں بھائی قتل ہو گیا۔ دردناک واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ فوٹیج میں ملزم کو مقتول پر تیز دھار آلے کے وار کرتے اور زمین پر گرتے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ دونوں بھائیوں کے جھگڑے کے دوران بہن بیچ بچاؤ کرتی رہی۔ مقتول اور ملزم کے درمیان 30,000 روپے بجلی بل ادا کرنے کے معاملے پر جھگڑا ہوا۔ پولیس نے ملزم کو حراست میں لے کر تفتیش کا آغاز کر دیا۔ ملک کے دیگر شہروں کی طرح منشن آباد میں بھی جمعیت طلبہ اسلام کی جانب سے مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت جمعیت طلبہ اسلام کے مرکزی قائدین نے کی۔ مزید تفصیل بتائیں گے چودھری محمد اسماعیل۔ جی اسماعیل، بتائیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں ضلع بہاول نگر کی تحصیل منشن آباد میں، جہاں پر فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جمعیت طلبہ اسلام کی طرف سے ریلی نکالی گئی ہے۔ ریلی کی قیادت جمعیت طلبہ اسلام کے جو مرکزی صدر ہیں جناب اویس صاحب، ملک اویس صاحب، انہوں نے کی ہے۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ مسلمان عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعیت طلبہ اسلام کا ماٹو ہے ہر ظالم سے بغاوت اور ہر مظلوم کی حمایت۔ تو یہ مسلمانوں پر جہاں کہیں بھی ظلم ہوگا یا کسی بھی انسان پر جہاں کہیں بھی ظلم ہوگا، جمعیت طلبہ اسلام اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائے گی۔ گزشتہ 1 سال سے فلسطینیوں پر ظلم کی انتہا کر دی گئی ہے اور جمعیت طلبہ اسلام ہر پلیٹ فارم پر اس کے لیے آواز اٹھا رہی ہے، اور ہم ہر قوت کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس ظلم کے خلاف آپ بھی مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کریں اور اس ظلم کو بند کریں، اور اسرائیل نے جو فلسطینیوں پر ظلم کیا ہے اس کے خلاف جنگی جرائم کے مقدمات درج کر کے اس کو کافر کردار تک پہنچایا جائے۔ سر، آپ جو پاکستانی عوام ہے اس کو کیا میسج دینا چاہیں گے، جہاں تک کہ جو اسرائیل کی اشیاء ہے اس سے تو انہیں کم سے کم بائیکاٹ کرنا چاہیے؟ اس سے متعلق آپ میں پاکستانی عوام کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اسرائیلی ہر پروڈکٹ کا
बाइकाट करें, चाहे वो खाने पीने की अशिया हैं, चाहे वो अफराद हैं। जी। जो फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ नहीं उठा रहा और इसराइल के हम समझेंगे वो इसराइल की प्रोडक्ट है, जो फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ नहीं उठाता वो इसराइली प्रोडक्ट है, हमें उनका भी बाइकाट करना जी। है। उनको जो हम मुंतखब करते हैं, असम्बलियों में भेजते हैं, हमने इसका रास्ता रोकना है और हमने फ़लस्तीनी जितने भी लोग हैं जो उनकी हमायत कर रहे हैं, हमें उनको नुमाइंदा बनाकर असम्बलियों में भेजना है, ताकि कल किसी और के ख़िलाफ़ या हमारे ख़िलाफ़ जुल्म हो तो ये लोग आवाज़ उठा सकें जो हक़ पर हैं। ये थे मलक अवैस साहब जो जमीयत तलबा इस्लाम के मरकज़ी सदर हैं। हमारे साथ तहसील सदर जनाब सैयद मदनी शाह साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि उनका क्या कहना है, क्या मैसेज है। अस्सलाम वालेकुम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज की जो ये रैली है ये ताईदार ख़त्म नबूवत व यकजहती के उन्वान पर है, फ़लस्तीन के साथ यकजहती है। और मैं आज ऐवान बाला में बैठे उन लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ख़त्म नबूवत हो या फ़लस्तीन का मामला हो, वहाँ अकल के नाखून लेने चाहिए, होश के नाखून लेने चाहिए, हमारे कानों पर जूं रेंगनी चाहिए। ख़त्म नबूवत का मामला हो, फ़लस्तीन का मामला हो, और जहाँ कहीं पर भी मुसलमानों का मामला हो वहाँ पर यकजां होकर असम्बली के फॉर्म पर करारदाद पेश करके उसको मंजूर भी करना चाहिए और उस पर अमल भी करना चाहिए। जी, जैसा कि आप सुन रहे थे, जो कि हमारे फ़लस्तीन भाई हैं, उनके बच्चों को जो गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है, उनके खून बहाए जा रहे हैं। लिहाजा जो मुसलमान हैं वो कम से कम चीज़ें हैं उनका बाइकाट करे, और जो हमारे उधर नुमाइंदे बैठे हैं, असम्बलियों में नुमाइंदे बैठे हैं, वो कम से कम फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाएँ। जी। शोरकोट में असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि नाजायज़ तजावुज़ात कायम करने और कम पैमाना पेट्रोल फ़रोख्त करने वालों को कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। मज़ीद तफसील देखते हैं अब्दुल वाहिद मुजाहिद की रिपोर्ट में। असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट असफन यार ने लारी अड्डा शोरकोट शाहिद शहीद रोड पे नाजायज़ तजावुज़ात कायम करने वालों के खिलाफ सख्त ऑपरेशन किया और साथ ही पेट्रोल पंप का पैमाना चेक किया। पैमाना कम आने की वजह से पेट्रोल पंप को 75,000 रुपए जुर्माना किया और नाजायज़ तजावुज़ात कायम करने वालों की तजावुज़ात कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट असफन यार ने कहा कि नाजायज़ तजावुज़ात कायम करने वाले और नाकिस पेट्रोल सेल करने वाले अब यहाँ नहीं चल सकते। मेन बाजार गुलफिशा टाउन और आगा स्ट्रीट मानसून की आमद होते ही नदी नालों का मंजर पेश करने लगा। गंदा पानी घरों में दाखिल हो गया, मुख्तलिफ वबाएं अमराज फैलने का खतरा बढ़ गया। अहले इलाका का शदीद एहतजाज। मजीद तफसील देखते हैं यासिर रफीक की रिपोर्ट में। जी, गुलफिशा टाउन, शेखपुरा रोड, मेन बाजार और आगा स्ट्रीट मुतल्लिका इलाकों मानसून आते ही चंद बारिशों से नदी नालों में तब्दील हो जाते हैं। नालों की सफाई न होने की वजह से गटर उबल जाते हैं और गंदा पानी घरों में दाखिल हो जाता है, जिससे वबाई अमराज फूटने का शदीद खतरा है। बाद अफराद ने अपने घरों के आगे मिट्टी की ट्रालियां डलवा ली, जिससे टाउन की पक्की सड़कें गायब हो चुकी हैं। मिट्टी से कीचड़ पैदा हो जाता है। सड़क पर मिट्टी डलवाने से बारिश का पानी दूसरों के घरों के आगे नदी नालों का मंजर पेश करता है। अहले इलाका की DCO शेखपुरा और मुतल्लिका इदारों से अपील है कि सड़क से बिला वजह की मिट्टी उठाई जाए और नीचे से सड़क को क्लियर किया जाए। कैमरामैन ताहिर के साथ मियां यासिर रफीक, स्पेशल TV लाहौर। कसूर में DPO मोहम्मद ईसा सुखेरा की हिदायत पर पुलिस का कोट राधा किशन में सर्च ऑपरेशन के दौरान 4 डाकुओं समेत 9 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। 4 मंशियात की मुकदमात दर्ज, 3.5 किलोग्राम चर्स शराब और एक चालू भट्टी भी बरामद कर ली गई। डकैती और राजधानी की वारदातों में मुलविस गैंग के 4 अरकान और संगीन मुकदमात में मतलूब एक मुजरिम इश्तिहारी गिरफ्तार कर लिया गया। सर्च ऑपरेशन SHO राव दिलशाद अली की सरबराही में किया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान 100 घरों को चेक किया गया, जबकि 300 के करीब अफराद से पूछगछ की गई। सर्च ऑपरेशन का मकसद संगीन जराइम में मुलविस अफराद की गिरफ्तारी और अमन व अमान के क़याम को यकीनी बनाना है। मियांवाली के नवाही इलाका सुल्तान खेल में दोस्त ने दोस्त को कत्ल कर दिया। कत्ल दोस्ती में नाराजगी पैदा होने की वजह से किया गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस मौका पर पहुंच गई और कार्रवाई का आगाज कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स का असर गरीब की सवारी बाइसिकल भी आवाम की पहुंच से दूर हो गई। मजीद तफसील बता रहे हैं अहमदपुर सियाल से चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम।
गरीब की सवारी बाइसिकल भी आवाम की पहुंच से दूर हो गई है। कमर तोड़ महंगाई में बाइसिकल की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। यही वजह है कि बाइसिकल 25,000 रुपए से कम में नहीं मिलती। बाइसिकल महंगा होने पर अहमदपुर सियाल के अवाम सरापा एहतजाज हैं। बोले कि बाइसिकल के दाम भी पेट्रोलियम मसनूआत के निर्खों में इजाफा के आफ्टर शॉक्स की जद में आ गई है। रेट इतना बात किया साइकिलों ने ला सर इतनी महंगाई हो गई क्या करिए उन दिनों रेट इतने बाद गन के होना तो साइकिल ही नहीं ला सकते। साइकिल इतने महंगे हो गए कि दिन ब दिन इन्हों का रेट वध गई है। दिन ब दिन ना सा पंचर लवा सकने ना कुछ इतने महंगे हो गए। पंचर तो 150-200 रुपया लै लेंदे। दिहाड़ी 3-4 बारी पंचर हो वही ने। हर चीज़ इतनी महंगी, टायर ट्यूब इतने महंगे हो गए। साइकिल पेट्रोल जो गरीब की दूर है। साइकिल इतना महंगा हो गया गरीब बंदा पंचर नहीं लगा सकता। शहरियों का ये भी कहना था कि बाइसिकल सिर्फ सस्ती सवारी ही नहीं बल्कि वर्जिश का भी जरिया थी, लेकिन अब ये भी कुव्वत खरीद से बाहर हो गई है। उन्होंने फौरी तौर पर बाइसिकल की कीमतों में कमी का मुतालबा किया है। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल टीवी, अहमदपुर सियाल। ओकाड़ा शहर के 2 बड़े हिस्सों को मिलाने वाला वाहिद रेलवे फाटक बंद कर दिया गया। मजीद तफसील देखते हैं इस रिपोर्ट में। ओकाड़ा शहर के 2 बड़े हिस्सों को मिलाने वाला वाहिद रेलवे फाटक डिवीजनल सुपरिंटेंडेंट रेलवे लाहौर के हुक्म पर बंद कर दिया गया। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से रकम की अदम अदायगी पर सिकंदर चौक रेलवे फाटक बंद होने से दोनों इतराफ में रहने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से 43,93,936 रुपए रेलवे को अदा न किए गए, जिस पर रेलवे फाटक बंद किया गया। शहरियों की तरफ से फाटक के करीब एहतजाज भी किया गया। शहरियों ने वजीर आजम, वफाकी वजीर रेलवे और आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। लेस्को के 2,169 फीडर्स में से सिर्फ 11 फीडर्स पर बिजली की सप्लाई मुतासिर है। तमाम फीडर्स पर तकनीकी खराबी की वजह से बिजली की सप्लाई मुअत्तल है। तकनीकी खराबी की वजह से बंद होने वाले फीडर्स की तफसीलात दर्ज हैं। मियाँ मीर, मेहताब वाला पी, जाहिदपुरा, नूरपुर 2, क्लब, सदीक ट्रेड सेंटर, पाकिस्तान, सेफ सिटी, दाता चौक, C1, तलवंडी, रेशम टेक्सटाइल कैटेगरी 3 फीडर्स पर 3 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि कैटेगरी 3 के फीडर्स की तादाद 163 है। कैटेगरी 4 के फीडर्स पर 4 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है और इसकी तादाद 68 है। कैटेगरी 5 के फीडर्स पर 5 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि कैटेगरी 5 के फीडर्स की तादाद 42 है। इन फीडर्स के अलावा लेस्को के किसी भी रीजन में कहीं भी लोड शेडिंग नहीं की जा रही। मुस्तफ़ाबाद ललियानी में सरहाली रोड की तामीर के लिए बड़े बड़े ग्रांट जारी होने के बावजूद सड़क की तामीर ताख़ीर का शिकार हो गई। अरसा दराज से बहुत ज़्यादा ज़बू हाली का शिकार सरहाली रोड को नया तामीर करने के लिए उखाड़ कर लावारिस छोड़ दिया गया है। रोड के दोनों तरफ ज़मींदारों की ज़मीनों से मिट्टी उठाकर बड़े बड़े गड्ढे बना दिए गए हैं, जो किसी भी वक्त किसी भी बड़े सानेहा का सबब बन सकते हैं। सरहाली रोड मुस्तफ़ाबाद के अलावा कई देहातों की ज़मीन का गुज़रगाह है, जिसकी वजह से अहले इलाका को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सड़क की तामीर ना शुरू होने की वजह से अहले इलाका आए रोज़ हादसात का शिकार होते हैं और इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब, DCO कसूर और दीगर आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा कर दिया। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिर्फ और सिर्फ स्पेशल टीवी।